Dear students, in the previous class we have discussed about various theories for origin of life. हमने कई सारी ऐसी theories की बात की थी that were for the origin of life. Out of them, the first theory was theory of special creation. Then we have discussed about the theory of spontaneous generation, or you can say the theory of abiogenesis. However, both the theories were incorrect and theory of abiogenesis was proved wrong by Reddy, Spallanzani and Pasteur. They said that the new life comes from the pre-existing life. So, they were not supporting the theory of spontaneous generation. The third theory was known as the sporozoic theory, that indicates that the life has came in the form of a protoplasm from some unknown part of the universe and it has reached the earth in the form of some spores or germs. However, this theory was also not proved to be correct. Then was the theory of eternity and the theory of catastrophism, which indicates that due to some sudden revolution, a massive destruction had taken place, after which all new life forms have again originated, which are different from the shape forms as existed previously. Whereas theory of eternity suggests that the life is continuing to exist as it exists before. That is, living organisms were observed even in the past, even on the primitive earth. They are observed even today and they will be observed even later on. Both these theories were not considered to be correct. Lastly, the last theory was the modern theory for origin of life. ये जो थियरी है इसे मॉडर्न थियरी, सिंथेटिक थियरी या तो फिर इसे कहा जाता है द ओपेरन हाल्डेन्स थियरी फॉर एक्सप्लेनिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ. सो हियर आई एम मेंशनिंग मॉडर्न थियरी फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ दैट वाज गिवन बाय Oparin and Haldane. This theory was given by Oparin and Haldane, which were two researchers, one from Russia, one from England, and they have proposed this theory. In the last lecture, I have briefed up you about this theory. What does this theory state? This theory states that in the primitive earth also, there was existence of atoms. मतलब जो प्रिमिटिव अर्थ था उसमें भी जो एटम्स थे वो प्रेजेंट थे, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट थे. In that conditions, it might have happened that these atoms might have combined together to form molecules. मतलब एटम्स जो हैं उनमें से मॉलिक्यूल्स बने थे, जैसे कि H2 बना था, H2O बना था, CO2 बना था, राइट, मीथेन, अमोनिया, ऐसे सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए थे. Due to interaction of these simple molecules, there was formation of simple organic molecules. मतलब inorganic molecules के several combination से बनते हैं simple organic molecules, जैसे कि simple sugars, fatty acids, glycerols, amino acids, ऐसे simple organic substances बने थे. And these simple organic substances might have combined to form large sized macromolecules like proteins, polysaccharides and fats, and such substances might have formed nucleic acids and all of them. So according to this theory, life has originated from non-living material itself. But the conditions in the primitive earth were such that they supported the combination of these several substances, और इनके combination से ही organic substances बने हैं और organic substance में से ही macromolecules form हुए हैं. And these macromolecules are the basics of a cell. That is, cell जो है वो बनता किससे है? हम बात करते हैं कि cell है तो cell का plasma membrane किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है, लिपिड से बनता है. तो प्रोटीन्स एक्चुअली माइट हैव फॉर्म फ्रॉम व्हाट दे आर फॉर्म फ्रॉम एमिनो एसिड्स. एमिनो एसिड्स किसमें से बने होंगे? तो एमिनो एसिड्स विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम अदर सिंपल मॉलिक्यूल्स. उनके कॉम्बिनेशन से एमिनो एसिड्स बने थे. तो प्रिमिटिव अर्थ जो था उसमें ऐसा एनवायरमेंट था दैट सपोर्टेड द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस एंड देयरफॉर फॉर्मेशन ऑफ द लाइफ. Whereas the existing earth conditions are such that they do not support the development of a new organism.
ऐसा हो सकता है कि अभी का जो एनवायरमेंट है वो फेवर नहीं कर रहा, उस टाइम पे जो एनवायरमेंट था दैट वाज अ फेवरिंग एनवायरमेंट फॉर कंपाइलेशन ऑफ दीज ऑल एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड सब्सटेंसेस टू फॉर्म सम न्यू मैक्रोमॉलिक्यूल्स, एंड दिस मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैव गिवन राइज टू द फर्स्ट प्रिमिटिव सेल्स। तो उन्हीं में से सबसे पहले सेल्स ओरिजिनेट हुए होंगे। इसलिए मॉडर्न थियरी के दो पार्ट्स हैं, एक है केमिकल इवोल्यूशन और एक है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ओपेरन और हाल्डेन ने बहुत ही क्लियरली ये समझाया हुआ है दैट व्हाट इज केमिकल इवोल्यूशन। So now we will have a look on whatever we have discussed. These all things will be explained over here. So according to this theory, according to this theory सबसे पहले क्या हुआ होगा that there will be several physico-chemical reactions which are occurring in between the atoms, और एटम्स के ये रिएक्शंस होने पर एटम्स में से डेवलप हुए हैं सबसे पहली बार मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो टू एटम्स हाइड्रोजन विल बी कंबाइनिंग टू फॉर्म H2। तो प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस में H2 प्रेजेंट था, वैसे ही N2 फॉर्मेशन हुआ होगा। Like from nitrogen there will be formation of N2, there was formation of carbon dioxide, there was formation of H2। तो H2O फॉर्मेशन जो हुआ होगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हो गया था, जिसकी वजह से whatever water was present, it was present in the form of vapor। And another thing is that there was no free oxygen left because all the oxygen जो free radical oxygen था that had combined with H2 to form H2O, जिसकी वजह से कोई भी फ्री ऑक्सीजन मतलब O2 का एटम फ्री था नहीं। इसलिए ऐसा माना जाता है that primitive earth conditions had presence of hydrogen but there was absence of oxygen, मतलब O2 जो है molecular oxygen that was absent at that time। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। सिंपल मॉलिक्यूल्स में से आगे क्या बनेगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैव कंबाइंड टू फॉर्म सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से यहाँ पे मतलब क्या है, जैसे कि शुगर्स है, राइट, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये फॉर्म हुए होंगे बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल सिंपल मॉलिक्यूल्स, एंड दीज सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैव कंबाइंड टू फॉर्म द लार्ज साइज मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बने होंगे मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मतलब पहले क्या बना है, एटम्स प्रेजेंट थे, सिंपल मॉलिक्यूल्स बने, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, और फिर क्या बना, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। एंड दीज मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैव कंबाइंड इन सेवरल वेज टू फॉर्म, क्या बनेगा इनसे, द फर्स्ट primitive cells, the components of the first primitive cell. So according to this theory also, life originates from non-living matter।
According to this theory also, one thing gets proved that life has originated from some non-living material. But the only thing this theory was accepted because the reasoning that they have given is very logical. उन्होंने ऐसा कहा था कि पहले प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो था उसमें एटम्स तो प्रेजेंट ही थे, तो ये एटम्स के वेरियस रिएक्शंस की वजह से बना हो सकता है शायद मॉलिक्यूल्स से बने थे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बने थे मैक्रोमॉलिक्यूल्स, और ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है, दे आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल. Because macromolecules include proteins, they include polysaccharides, and these are the substances that give rise to a primitive cell. तो उन्हीं की वजह से सेल बने होंगे. इसीलिए ये थियरी प्रूफ तो यही कर रही है that लाइफ जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर. And this type of evolution, this type of origin of life that has been explained is known as, this type of evolution is known as chemical evolution. This was known as chemical evolution. तो ओपेरन और हाल्डेन ने जो अपनी थियरी प्रूव की थी उसे मॉडर्न थियरी भी कहा जाता है, ओपेरन हाल्डेन थियरी भी कहा जाता है, एंड थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन भी कहा जाता है. केमिकल इवोल्यूशन बिकॉज देयर वेर सेवरल केमिकल रिएक्शंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ द macromolecules and then after they compile to form the components of the cell. इसीलिए इस थियरी को केमिकल इवोल्यूशन कहा जाता है. तो ये थियरी दी है किसने, ओपेरन और हाल्डेन ने. सो ओपेरन वाज अ रिसर्चर फ्रॉम रशिया and Haldane was from England, and they both had similar views for chemical evolution. तो इन दोनों के व्यूज जो थे, वैसे तो हाल्डेन वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, बट इन 1957 मतलब बहुत ही पहले ये शिफ्ट हो गए थे इन ओरिस्सा में शिफ्ट हो गए थे, और बाकी की उन्होंने जो भी रिसर्च की थी दैट वाज डन इन इंडिया ओनली. तो ओपेरन और हाल्डेन ये दो जो रिसर्चर्स थे उन्होंने सबसे पहले ये पूरा ही एक कंसेप्चुअल एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी बताया था that how the chemical evolution has actually occurred, and therefore this theory is considered to be the most acceptable theory for origin of life. Let us observe each stages in detail. तो सबसे पहला स्टेज जो है केमिकल इवोल्यूशन का, सबसे पहला स्टेज है जिसे कहते हैं एटॉमिक फेज. एटॉमिक फेज में ये कहा जाता है that primitive earth had the presence of different types of atoms. Primitive earth conditions include atoms like हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर. मतलब जो प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन है, यहाँ पे हम क्यों फेजेस के वाइज डिवाइड कर रहे हैं. देखो सबसे पहला आता है कौन सा फेज, एटॉमिक फेज. मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि प्रिमिटिव अर्थ में कौन से एटम्स एग्जिस्ट हो रहे थे. तो हमने बता दिया कि कौन से एटम्स है, हाइड्रोजन था, कार्बन था, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर, ये सारे एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट थे. नेक्स्ट स्टेज क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेज एटॉमिक फेज से एक स्टेज आगे, मतलब फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्या आएगा, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो हम सेल की बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर कैसे, मतलब जो सेल्स हैं उनमें कैसे चीजें प्रेजेंट होंगी, तो मॉलिक्यूल्स जैसे कि H2 प्रेजेंट होगा, CO2 प्रेजेंट होगा. हाइड्रोजन वाज द मोस्ट रिएक्टिव एट दैट टाइम, इसीलिए हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएगा विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O. हाइड्रोजन माइट हैव रिएक्टेड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया.
तो अमोनिया फॉर्मेशन मतलब ऐसा माना जाता है कि प्रिमिटिव अर्थ पे सबसे पहले एग्जिस्ट होने वाले मॉलिक्यूल्स ये दो ही थे, वाटर and ammonia. They are considered to be the most primitive molecules present. और उसके बाद this carbon combined with the hydrogen to form methane. तो मीथेन फॉर्मेशन हुआ और ऐसे ही करके दूसरे सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनके रिएक्शन से फॉर्म हुए थे और फिर मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो ये हम आगे देखते हैं। So the first stage was the stage of atomic phase. In this phase, it is shown that the primitive earth had the presence of different types of atoms. Now we talk about the next phase. The next phase is formation of simple molecules. Now how did these simple molecules form? So by various interactions amongst the atoms that were present, there was formation of the molecules. मतलब atoms have reacted to form the molecules. Which type of molecules had formed? Where H2, N2. ये दोनों तो बनेंगे ही by hydrogen and nitrogen. इसके बाद there was even formation of the CO2. There was formation. Hydrogen was very reactive. And therefore it combined with nitrogen to form the ammonia. तो ammonia formation हुआ था, उसके साथ साथ there was formation of the methane also, and most importantly there was formation of water. तो ये सारी चीजें, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं H2, N2, CO2, अमोनिया, मीथेन, वाटर, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं and they have formed as what? They are the basis of the protoplasm. मतलब जब हम प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं तो प्रोटोप्लाज्म हैज दीज ऑल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट विद इन इट. सो प्रोटोप्लाज्म के जो बेसिस थे वो यहीं पे फॉर्म हो जाते हैं, दैट इज अमोनिया, मीथेन एंड दीज ऑल सब्सटेंसेस हैव फॉर्म. नाउ आउट ऑफ देम हाइड्रोजन वाज most numerous and reactive. मतलब सारे ही एलिमेंट्स में से हाइड्रोजन जो था वो सबसे ज्यादा भी था और सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी था. इसीलिए प्रिमिटिव अर्थ conditions were reducing conditions. उन्हें रिड्यूसिंग कंडीशंस इसीलिए, अभी की जो अर्थ कंडीशंस है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग बोलते हैं क्योंकि अब जो है वो ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ही ज्यादा था. उस टाइम पे क्या था, फ्री ऑक्सीजन वाज नॉट अवेलेबल बिकॉज हाइड्रोजन combined with the radical oxygen and it resulted into formation of H2O. तो सबसे पहले क्या हुआ था, formation of H2O, but as the temperature was very high, ये H2O mainly कौन से form में था, it was in the form of water vapor. Secondly, hydrogen reactive होने की वजह से it reacted with nitrogen and it formed formation of अमोनिया. तो अमोनिया फॉर्म हो गया, वाटर फॉर्म हो गया. तो ऐसा कंसिडर किया जाता है दैट H2O एंड द अमोनिया were the first molecules to exist in the primitive earth. तो प्रिमिटिव अर्थ एनवायरमेंट में सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट हुए थे वो थे वाटर विच वॉज इन द फॉर्म ऑफ वेपर एंड सेकेंडली देयर वॉज अमोनिया. तो ये दोनों इसीलिए फॉर्म हुए थे क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए वाटर के मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया. ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने की वजह से कोई भी फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन O2 रहा नहीं, और O2 नहीं होने की वजह से इस एनवायरमेंट को क्या कहा जाता है, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट. जबकि अभी के एनवायरमेंटल कंडीशंस को हम
ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस कहते हैं। तो ये चीज हो गई क्या, हमारा सेकेंड स्टेज, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। अब सिंपल मॉलिक्यूल्स के बाद आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो अब सिंपल मॉलिक्यूल्स तो बन ही चुके हैं, अमोनिया, वाटर, N2H2, ये सारी चीजें तो बन ही चुकी है। तो इनके वेरियस कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सो कॉम्बिनेशन ऑफ simple molecules resulted into formation of simple organic molecules। तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फॉर्म होंगे बाय डिफरेंट रिएक्शंस। अब इसका रीजन भी है, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म हुए होंगे। तो क्या था कि जो प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस है वो रिड्यूसिंग तो है ही, पर उसके अलावा प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस में क्या हुआ था, दैट देयर वाज प्रेजेंस ऑफ टॉरेंशियल रेन्स। मतलब एक्सेसिव फॉर्म में टेम्परेचर कम होने की वजह से धीरे धीरे जैसे अर्थ का टेम्परेचर कम हो रहा था, बहुत सी कंडेंसेशन रिएक्शंस हो रही थी उस टाइम पे अर्थ पर, जिसकी वजह से देयर वाज कंटिन्यूअस रेन्स फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग पीरियड। इतने सारे रेनफॉल था, इतना सारा रेनफॉल था दैट दे गेव एग्जिस्टेंस टू द फर्स्ट वेरी एंशियंट ओशियंस ऑन द अर्थ, जिनकी वजह से उसके पहले तो वाटर था, वो सारा वाटर वेपर के फॉर्म में था। पर क्या हुआ कि ड्यू टू दिस एक्सेसिव रेन्स व्हिच कंटिन्यूड फॉर डेज एंड डेज, उसकी वजह से देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट वाटर बॉडीज, ओशियनिक वाटर बॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब ये वाटर बॉडीज फॉर्म हुई थी। तो वाटर बॉडीज फॉर्म होने पर ये जो सारे एलिमेंट्स है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है मीथेन, लिखा है अमोनिया, लिखा है कार्बाइड्स, नाइट्राइड्स, ये सारी जो चीजें बनी थी ये सारी डिसॉल्व होने लगी किसमें, इन दैट वाटर। मतलब वो जो ओशियनिक वाटर्स है, एंशियंट ओशियनिक वाटर्स, उनमें ये मीथेन एंड गैसेस एंड एवरीथिंग स्टार्टेड गेटिंग डिसॉल्व। एंड एज अ रिजल्ट डिसॉल्व तो होने लगे, उसके साथ साथ क्या हुआ कि उस टाइम पे टेम्परेचर हाई होने की वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो थे, या तो फिर उस टाइम पे जो लाइटनिंग या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता होगा, दैट ऑल वेयर द सोर्सेस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मतलब ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है इन प्रेजेंस, ऑलरेडी ये पानी में तो है ही, क्योंकि हमने कहा दैट देयर वाज टॉरेंशियल रेन्स, सो ऑल दिस मटेरियल गॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ये सारी चीजें पानी में है। अब और क्या हो रहा है कि इसी के साथ साथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डायरेक्टली यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे आ रहे हैं, वाटर पे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई ओजोन लेयर उस टाइम पे था नहीं। तो ओजोन लेयर ना होने की वजह से अल्ट्रावायलेट रेज तो आ ही रहे थे, प्लस रेनफॉल की वजह से जो लाइटनिंग डिस्चार्ज था, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दैट टाइम जो हो रहा था, वो भी जो था दैट वर्कड एज अ सोर्स फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे कंबाइन होने लगे और यहाँ पे फॉर्म होने लगा सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसीलिए अब वो जो वाटर था उसमें इंस्टेंट मॉलिक्यूल्स तो थे, पर मॉलिक्यूल्स के साथ साथ क्या फॉर्म हो गया था, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि शुगर्स फॉर्म होने लगे, right? Along with sugars there was formation of amino acids. Along with amino acids there was formation of fatty acids, nucleotides, glycerol, etc. So in short ये सब क्या है, monomers। क्या फॉर्म होने लगा, monomers। And who is responsible for this monomer formation? Rainfall, which dissolved all this material into the water, and secondly the excessive lightning, the excessive ultraviolet radiations, they were working as a source of energy for these molecules to get combined. And when these molecules got combined, there was formation of the simple organic molecules.
Students, this thing has been experimentally proved by a researcher called Urey and Miller. यूरे एंड मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया है कि कैसे इनऑर्गेनिक मतलब कैसे ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में से ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि शुगर एमिनो एसिड्स बनते हैं, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है इन देयर लैब्स. And this proves that in presence of very high temperature, in presence of electric discharge, it is possible that substances like methane, ammonia, water vapor, they combine and produce substances like sugars, amino acids. तो वो एक्सपेरिमेंट भी हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अभी सिर्फ ये कंप्लीट कर देते हैं कि आगे क्या फॉर्म होगा. So this all material, sugar है, amino acids है, ये सब dissolve. This was present. This all things were present in what? Ancient oceanic waters. Right? अब मैं वापस नहीं मेंशन कर रही हूँ कैसे ancient oceanic water, क्योंकि मैंने कहा कि there was excessive rain, जिसकी वजह से वाटर बॉडीज फॉर्म हुई थी. और ये वाटर बॉडीज में पहले तो ये मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हुए थे और फिर लाइटनिंग और थंडर और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से ये मॉलिक्यूल्स में से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे. इसलिए ये सारे मॉलिक्यूल्स किस में फॉर्म हुए? इन द एंशिएंट ओशियनिक वाटर, पानी में ही फॉर्म हुए. अब पानी में फॉर्म होने पर ये क्या हुआ कि the whole oceanic water got filled up with many such molecules. मतलब sugars, amino acids इन सब से fill हो गया था, बहुत ज्यादा था. And therefore these oceanic waters were also known as hot prebiotic soup. इसे क्या कहा गया था? हॉट प्रीबायोटिक सूप. मतलब ये जो सारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो अब पानी में है, ये जल्दी से डिग्रेड भी नहीं होने वाले. क्यों डिग्रेड नहीं होने वाले? क्योंकि यहाँ पे कोई एंजाइम्स नहीं है इन्हें ब्रेक करने के लिए. सो फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स, फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, ये सारा मटेरियल जो है वो किस में रहा? पानी में ही रहा. एंड इट डिड नॉट गेट डिग्रेडेड. तो डिग्रेड नहीं हुआ तो वही एंशिएंट वाटर में क्या रहेगा? ये सारी चीजें डिसॉल्व फॉर्म में रहेंगी. और इसीलिए इसे क्या कहा गया है? हॉट प्रीबायोटिक सूप कहा गया है. किसे? एंशिएंट ओशियनिक वाटर को, क्योंकि यही वाटर है जिसमें सारे ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. और लास्टली इन द लास्ट स्टेज व्हाट विल हैपन? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द मैक्रो molecules. So primitive earth conditions like this lightning and electric discharge and ATP, everything present in water supported the conversion of, मतलब sugars जो हैं they are going to polymerize to form. polymerize होगा तो क्या बनेगा? polysaccharides. So there was formation of polysaccharides. Same way from amino acids there was formation of proteins, fatty acids combined with glycerol. There was formation of fats, right? Nucleotides, they combined, polymerized to form nucleic acids. क्या बना था? न्यूक्लिक एसिड्स. तो प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, एटीपी which was a source of energy for the polymerization of sugars to polysaccharides, polymerization of amino acids to proteins, or you can say polypeptides, fatty acids to fats, nucleotides to nucleic acids. नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बात करेंगे तो हम ये बात करेंगे कि ये इनऑर्गेनिक मतलब ये जो सब्सटेंसेस है, सिंपल मॉलिक्यूल्स, इनके यूज से हाउ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स एंड एमिनो एसिड, ये समझाया था विथ एन एक्सपेरिमेंट यूरे एंड मिलर ने. तो हम नेक्स्ट लेक्चर में यूरे मिलर्स एक्सपेरिमेंट देखेंगे. स्टूडेंट्स, you have started receiving the videos for the chapter evolution. Remember, this chapter is being dealt along with the content of NEET. So you will have to study both for this chapter, that is your regular textbook also as well as the NEET material also. So here those students who are going to study for NEET will get a detail of this chapter.
Now onwards, we are not starting. After completing this chapter also, we are not going to begin with a new chapter. Instead, we will be completing the NEET of all the previous chapters. जो पुराने chapters हो गए हैं, उन सब chapters का NEET content next से start होगा. पर ये जो chapter है evolution, ये chapter मैंने NEET और आपकी textbook दोनों को compile करके ही start किया है. So it is very important for you to make proper notes of it. तो ये ध्यान रखिएगा and study this chapter properly.